आई वाज इन आर्ट्स, तो क्या सोचा है, इंजीनियरिंग या मेडिकल? ह्यूमैनिटीज, जो इंडिया में ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। आपके पेरेंट्स ने कभी प्रेशर तो नहीं दिया आपको कि साइंस या? So hello everyone, today I have someone who is inspiration to all the students who want to be at Stanford, and he is going to share the hard work it takes to be at Stanford. So hi Manu, आपको introduction की कोई जरूरत नहीं है, but can you please introduce yourself? Hello, Harnu. It's my pleasure to meet you, and like I'm really very excited to meet you. And the first thing that I would say in my introduction is that I'm a big fan of yours, and everything comes after that. So my name is Manu Chauhan, and I have applied to the US, and I got admission in Stanford University, and I will be beginning my studies in the fall of 2021. And I studied in a philanthropic institution called Vidyagyan School, which is run by the Shiv Nada Foundation. And Shiv Nada Foundation is a charity foundation which is undertaken by Hindustan Computers Limited, which is a great tech company in India. Yep, indeed. This is one of the best foundation जो मैंने देखा है, like it has like made it possible for so many students जो सोच भी नहीं सकते थे, they didn't have a dream to be abroad, और उन्हें पहुंचा दिया. So आप थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर करना चाहोगे, like what kind of students are there, आप कैसे पहुंचे वहां पे, and like आपकी बैकग्राउंड से? Okay, so मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. मेरे फादर एक इज अ स्मॉल इंश्योरेंस सेल्समैन इन अ विलेज. सो मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ जो मेन सिटी है, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं. तो वहाँ से 21 किलोमीटर दूर है जो मेन सिटी है मेरा. तो मेरे फादर एक स्मॉल इंश्योरेंस सेल्समैन थे, तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, इसकी वजह से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था. तो व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट स्कूल आई एक्चुअली वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्टफ, sports and stuff like that, but just due to my financial condition I could not, like whenever I had to think about participating in any activity that interests me, I had to look at my financial condition. So in class 5th मेरे पापा को पता चला कि एक फाउंडेशन के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है जो कि रूरल मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं बट मेरिटोरियस है, तो उनके लिए एक स्कूल है. तो पापा ने उसका फॉर्म भरा और फिर मेरी प्रिपरेशन भी कराई. तो उसमें 2 राउंड थे उसके पूरे टेस्टिंग के, और उसके बाद एक इंटरव्यू भी था, तो फिर मेरा हो गया था. तो क्लास 6 में एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज, like now I could participate in anything, so everything was taken care by the school authorities. Amazing. Now I really want to share students the hard work it takes to be at Stanford starting your 8th 9th grade. तो आप day in life बता सकते हो, how does a day in life of a Stanford aspirant looks like? So I was in class 8 when I actually dreamt about Stanford and US universities. So I was sitting in my school's amphitheater and I was watching a documentary on one of my seniors. So this senior went to the US for some exchange program. So that day I really got motivated and inspired, like this is what I want to do, this is where I want to go in. So in class 8 I made my mind about Stanford and other US universities. So class 8 से मेरी mental preparation मैंने अपने आप को start करी, like ये पूरी application समझने की प्रोसेस, क्योंकि ये जो पूरी यूएस की एप्लीकेशन प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है. इसमें ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में एक 96% लेके आगे तुम इस कॉलेज में चले जाओगे. तो तुमको बहुत ज्यादा एक तुम्हारी पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं इसमें, तो इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगे. तो क्लास 8 से ही मैंने समझना स्टार्ट कर दिया था इस प्रोसेस को पूरी को. और फिर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें अगर लकड़ी काटने जाना तो तुम्हें अपनी पूरी कुल्हाड़ी साफ करनी पड़ेगी. तो वो जो वर्क हुआ था वो 8 से लेकर 10 तक मैंने किया. तो वहां पे मैंने novels, classic novels, like most of the student of my generation, they are not interested in classic novels, they're interested in Chetan Bhagat and like other contemporary writers. तो उनको फिर क्लासिक नोवेल्स में मेरा इंटरेस्ट होना, उनकी जो लेवल है इंग्लिश का या फिर वो सब, तो वो मैंने वहां से स्टार्ट किया. और जो यूएस का मैथमेटिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है इंडिया से या सीबीएसई से. तो मैं सीबीएसई का भी कर रहा था और यूएस के तरीके से भी मैं उसको देख रहा था. तो एसएटी की प्रिपरेशन और अपने आप को जानने की प्रिपरेशन क्लास 8 से स्टार्ट होगी. फिर क्लास 11 से जो रियल वर्क स्टार्ट होता है कि तुम्हें एसएटी देना है और ये सब, फिर जो डेडलाइंस वगैरह है. तो क्लास 11 में फिर मैं 5 से 6 घंटे में इसमें देने लग गया, लाइक लगभग 2 से 2.5 साल मैंने 5 से 6 घंटे दिए हर रोज. तो मेरा जो स्कूल का रूटीन है वो क्लास लाइक 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हम जगते हैं 5 या 6 बजे के करीब जगते हैं. उसके बाद सब कुछ करके 2 बजे हमारा स्कूल खत्म हो जाता है. 2 बजे, तो 2 बजे का रेस्ट वगैरह करने के बाद, स्पोर्ट्स करने के बाद फिर मैं 6 बजे शाम को बैठ जाता था. डिनर विनर का गैप देने के बाद 6 से लेकर रात को 2 बजे तक. तो वो मेरा था, क्योंकि मैं थोड़ा रात में पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि रात में लगता है मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है. Awesome. लाइक ये भी बहुत, मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा एडवाइस दूंगा कि लोग समझते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए. बट ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारी बॉडी को सूट करता है वो तुम्हें करना चाहिए. क्योंकि अगर मैं सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मुझे लगता है मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा.
Definitely, indeed. And काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता how much time they should dedicate in SAT, और essays भी बीच में आ जाते हैं, और आपकी स्कूल की पढ़ाई भी होती है. So how many hours, चलो 2 बजे स्कूल खत्म हो गया, right, 11th 12th में. So after that how many hours you dedicate to SAT, how many hours अगर कॉलेज essays भी साथ में आ जाते हैं? So I dedicated around 2 to 3 hours for my regular school studies for CBSE board preparation and other examinations, like 4 to 5 hours to SAT. And when I was preparing my essays and writing my essays, I was back at my house, so I could give more number of hours to it, because lockdown हो गया था वहाँ पे कोविड की वजह से, तो 2020 की बात थी वो, तो मैं थोड़ा सा ऐसे वगैरह में और टाइम दे पाया अपने आप को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन में और ज़्यादा टाइम हो पाया. Amazing. And I forgot to ask you कि आपका मेजर क्या होने वाला है स्टैनफोर्ड में, और you haven't decided maybe? Like right now I have in my mind like international relations and economics, but I'm like in class 12 अगर तुम इंडिया में हो तो तुम्हें इतना चीजें पता नहीं होती हैं. तो मैं कह रहा था जो क्लास 12 में या फिर तुम CBSE में हो तो तुम्हें सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट पता होते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. बट अगर तुम फिर कॉलेज लेवल पे जाते हो पता चलता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए. तो अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स है, बट डेफिनेटली मैं ओपन हूँ कि बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ और फिर अपने आप को और जानूँ और अपने इंटरेस्ट को जानूँ. Awesome. तो अभी मेरे दिमाग में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स ही है मेजर. Awesome. आपने कॉमर्स ली थी शायद 12th में, राइट, कि आर्ट? नो, आई वाज इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो इंडिया में ह्यूमैनिटीज बोलते हैं. ह्यूमैनिटीज, आई सी. साइंस, सोशल साइंसेस. या हमारे स्कूल में आर्ट्स कहते थे शायद, या ह्यूमैनिटीज कहते थे, आई फॉरगॉट. बट लाइक काफी स्टूडेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स तो पढ़े होते हैं कि साइंस ही लेने है बेटा, मतलब आजकल भी ये चलता है, राइट? आपके पेरेंट्स ने कभी प्रेशर तो नहीं दिया आपको कि साइंस? या नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रेशर नहीं देते, क्योंकि मैं टॉप 1% ऑफ द क्लास में था, तो उन्हें पता था कि ही इज गुड, तो वो उसका इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए वो ले रहा है, तो इसलिए उन्हें कुछ कहा नहीं. Awesome. बट हाँ, ये मेंटेलिटी होती है. अभी मैं जिस गांव में रहता हूँ मैं, वहाँ भी यही मेंटेलिटी है. अगर मैं किसी को बताऊँ कि मेरे पास साइंस नहीं है, मेरे पास ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, तो बोलेंगे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स है तुम्हारा मतलब तुम थोड़े इंटेलेक्चुअली थोड़े से पीछे हो, ऐसा समझते हैं. बट ये मुझे लगता है चेंज होना जरूरी है अभी. एंड एसेज आपको पता है जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक यू हैव टू स्टार्ट मंथ्स इन एडवांस. तो इस पूरे इंट्रोस्पेक्शन में आपको कैसे पता चला दैट what stories to include and what stories not to include, because you are indeed one of the most inspiring child. तो आपकी तो इतनी ज्यादा stories होगी, like you have done so many activities. तो how did you figure out that this activity to include? And आप पहले अपनी activities बता सकते हो, like I had done so and so, and उसमें से कैसे pick किया आपने? Okay, so the first thing I would tell is that I'm a state level table tennis player. तो मैं table tennis में बहुत ज़्यादा interested था, और मैं MUs वगैरह बहुत ज़्यादा करता था. एंड आई ऑल्सो डिड अ रिसर्च अंडर प्रोफेसर ऑफ शिवनाडर यूनिवर्सिटी. तो शिवनाडर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, तो मैंने उनको कोल्ड ईमेलिंग करी और उनको मैंने अपना रिसर्च का आइडिया बताया. तो उनकी रिसर्च को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, लाइक 2 to 3 years. तो मुझे समझ में आया कि ये आइडिया हो सकता है, तो मैंने उनको आइडिया दिया अपना कि ये है. तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो हमने एक रिसर्च पेपर लिखा, उसमें वो पब्लिश भी होने वाला रिसर्च पेपर. तो वो रिसर्च पेपर था एजिज्म इन रूरल इंडिया, क्योंकि मैं रूरल इंडिया से बिलोंग करता हूँ. शायद पेपर जो एजिज्म देखे रूरल इंडिया में, जो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, उसके जो मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स हैं, उसको जानने के लिए और उसके पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए हमने एजिज्म पर रिसर्च पेपर लिखा, लगभग 4 से 5 महीने में. तो एक मेरी मेजर एक्टिविटी थी, और मैं टेबल टेनिस तो खेलता था. उसके अलावा फिर मैंने बहुत सारे यूथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया. तो मैं इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट भी किया यूथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, और मैं जो बहुत सारे जो वर्ल्ड लेवल के एम्यूएंस होते हैं उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था. ये कुछ हाईलाइट्स थी, और भी बहुत सारा कुछ था, बट like I also initiated a club in the school for debate and stuff like that. So and one more thing, like the most important thing, like जो मेरे दिल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, वो है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ और मैं पब्लिश भी करता हूँ ऑनलाइन. तो मैंने वो भी कंटिन्यू रखा था. मैं ब्लॉग राइटिंग करता था और शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, फिक्शन. सो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है. क्या बात है. आपका ब्लॉग क्या है? लाइक आई वुड लव टू चेक आउट एंड शेयर नाउ. लाइक इनमें से कौन सी एक्टिविटीज आपने क्वेश्चंस जो स्टैनफोर्ड की ऐसे क्वेश्चंस होते हैं को कैसे पिक किया? लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि लाइक इट्स बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कहीं से एक्टिविटीज उठानी पड़ती है? लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस? क्योंकि क्वेश्चंस आई थिंक दे शेयर 6 months इन एडवांस, राइट? सितंबर में डेडलाइन होती है, वो ऐसे क्वेश्चंस 6 months पहले दे देते हैं, राइट? सो यू कैन प्रिपेयर. सो how were like a general idea of questions आप बता सकते हो, and how did you pick so and so activities to share in the essay? तो मैं जो मतलब वैसे तो प्रॉम्प्ट्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं, बट जो मैं जनरल आइडिया है कि यूएस के जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो एप्लीकेशन के प्रॉम्प्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं.
और मैं समझूंगा जैसे जो सोसाइटी है हमारी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी के, तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को उस चीज से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। आइडियल आइडेंटिटी हमारे सामने एक सोसाइटी बनाती है कि दिस इज आइडियल आइडेंटिटी, यू वांट टू, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी दिस एंड दैट। तो वो जो हमारी आइडियल आइडेंटिटी को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो उसको तुम्हें पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में, यानी पूरे ऐसे राइटिंग में उसको निकालना होता है। और उसी तरीके के प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि तुम्हारे लिए मीनिंगफुल क्या है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हारी ऐसी चीज क्या है जो तुम्हें इंटेलेक्चुअली क्यूरियस करती है। तो ऐसे प्रॉम्प्ट जो तुम्हारी एकेडमिक से भी जुड़े हों, तुम्हारी पर्सनैलिटी से जुड़े हों। तो मैं बोलूंगा कि जो भी यूएस के लिए या फिर पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वो अपने आप को पहले जानें, लगभग 4 से 6 महीने देंगे, अपने आप को समझें कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ, क्या वो मैं सच में अपने आप को समझता हूँ या फिर दूसरे लोगों ने मेरे को बताया है। अगर आप अपने आप को जान लेंगे अच्छी तरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज पुट करनी है, कौन सी चीज उस पर पुट करनी है, कौन सी नहीं करनी। Indeed, totally agree. And next is like अगर आपने scores share करना चाहोगे, and do you think कि SAT score matter की? हाँ, तो शायद कोविड-19 में जो अब तो शायद ऑप्शन होगा, बट मैं बोलता हूँ एसएटी का स्कोर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा से इंपॉर्टेंस रहा। जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा था, तो शायद उस टाइम पे तो जो एसएटी का स्कोर था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरा एसएटी का स्कोर 1470 था आउट ऑफ 1600, और टोफल में आई गॉट 115। So in इस optional में like since it's optional, तो students को देना चाहिए, right? For sure, I personally think देना चाहिए because international students have to stand out, right? यस, उनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन हमेशा डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि जो हमें गूगल पे दिखता है कि दिस इज द एडमिशन रेट ऑफ हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, वो ऐसा रियलिटी हमारे लिए नहीं होता है, वो उनके डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए होता है। हमारे लिए हम स्कॉलरशिप भी मांगते हैं, हम और भी चीजें मांगते हैं, तो हमारे लिए एडमिशन रेट और भी कम हो जाता है अपने आप ही। तो वो हर एक चीज करनी चाहिए जो पॉसिबल हो सकती है। Indeed. हर जगह हाथ पैर मारो, हर जगह हाथ पैर मारो। Totally agree. Yep. अब let's talk about financial aid. तो हम कह सकते हैं कि now any middle class student in India or even lower than that can afford. तो आपने जो financial aid apply करने के लिए जो details दी, कैसे form भरा, कौन सी प्रोफाइल पड़ी, I think CSS प्रोफाइल भरनी पड़ती है, common app भरना पड़ता है. So what are the information students should have ready in their hand to give it to the university? ओके, सो जो फाइनेंशियल एड के लिए आपको सीएसएस प्रोफाइल, जो आपने बताया अभी, सीएसएस प्रोफाइल होती है, आपकी कॉमन ऐप में भी होता है, और आपका जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हुआ, या फिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सीएसएस प्रोफाइल, जो लोगों को पता नहीं है सीएसएस प्रोफाइल में होता क्या है, तो आपकी जो इनकम जो होती है आपके फादर की और आपकी फैमिली की, वो एकदम ब्रेक डाउन करते हैं उसमें एकदम, कि जैसे इसमें इतना है, आपने इसमें इतना खर्च करते हो, तो वो सीएसएस प्रोफाइल पूरा बता देता है कि आपका उसमें किस एक्टिविटी में या फिर किस चीज में कितना पैसा जा रहा है, तो इससे आपको उनको अंदाजा हो सके कि आपके एजुकेशन में कितना खर्च हो सके या फिर अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो। तो ये होगा सीएसएस प्रोफाइल होगी, और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हो गए। उसके अलावा कुछ अदर चीजें भी मांगते हैं, जैसे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का जाओगे तो वो सीएसएस प्रोफाइल से ही लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर एक ही चीज मांगते हैं, उनमें भी उनके अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, वो भी आपको सीएसएस प्रोफाइल की तरह भरना पड़ेगा। तो यही कुछ इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, यही होते हैं बस 2-3। So they don't ask you to convert INR to USD, right? ऐसा नहीं होता कि मतलब USD में इनकम बताओ या INR में बताओ, कैलकुलेट करो। yes, अगर CSS में कर रहे हो, CSS प्रोफाइल में तो INR ही रहता है, बट अगर उनके स्पेसिफिक चीज आती है तो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर CSS प्रोफाइल में INR ही होता है, जहां तक मेरे को याद है, अभी बहुत दिन हो गया, बट हाँ। Awesome. So in short, मतलब अप्लाई करना फाइनेंशियल एड के लिए, it's just one check mark and basic information. ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब right? Yes. Yeah, it depends on the merit, यार तुम कितने वो हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, like लास्ट में तो यही मैटर करता है। Awesome. And last few questions I wanted to ask about the application कि मैंने देखा कुछ जो अप्लाई करते हैं लोग, they just fill out as much information as possible. Additional information भी और बता देते हैं कि मैंने Coursera पे कोर्सेज भी किए, मैंने so and so भी किए। So like is it good to show off to the like to like कि 110% दो, अपना शो ऑफ करी जाओ, और नॉट कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी बुरी बात है कि नहीं? ये आपने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर ट्राइंग टू पुट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन में एक, जो अगर आप कॉमन है भर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको नंबर ऑफ आवर्स पूछते हैं, कि नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वीक्स। तो सिंपली इससे अगर तुम डिसाइड कर सकते हो कि जो यूएस मांग रहा है या फिर जो यूनिवर्सिटीज मांग रही है, वो मांग रही है कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को जान रहे हैं। तो पर्सनैलिटी तभी जान पाओगे कि जिसमें तुमने बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया हो। तो बस वही इंक्लूड करो जिसमें आपने 4 से 5 साल दे रखे हैं किसी एक्टिविटी में। अगर वो एक मंथ में या फिर एक महीने में खत्म हो गया, तो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बारे में पता क्या चलेगा? कुछ नहीं।
Exactly, that's an तो amazing tip. मतलब indeed मैंने भी, if I realize about my application, मैंने भी काफी चीजें की है जो 1-2 महीने करके छोड़ दी. It shows that you're not passionate about it. Passion is या something you keep doing for a long time. तुम्हारे वो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उसको जानना, तो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा होगा जो बहुत प्रोलॉन्ग होगा, बहुत बहुत ज्यादा लंबा होगा, उसके बारे में पता कर सकते हैं वो. तो ये बहुत बेसिक टिप है, बट बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो समझ जाते हैं जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो क्या ट्राइंग टू शो ऑफ. तो मैं यही बोलूंगा कि जो एसेज हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लो. मैं बस यही मेरी लाइक प्रो टिप रहेगी कि एसेज को बहुत ज्यादा सीरियस लो. Awesome. ऐसे So thank you so much, Manu. It was indeed pleasure to be with you, and I'm sure this video will indeed inspire thousands of students, millions of students who want to be at Stanford as well. Thank you so much. Thank you, Harnu. Thanks for having me here.